right? सामने कुछ है नहीं, but you have to imagine that something is there, it's coming from here, it's going there. So I think challenging would be just that. But other than that, मेरी पूरी life में this was the most fun shoot I have ever had. I think our entire team, and first thanks to the director because you know he set the vibe. And it was the most comfortable, most fun shoot. जब भी shooting होता था, I was very happy. When we didn't have shooting, I was like, oh no, I miss our shoot, I miss our shoot. तो एक बहुत ही अच्छे से बनी हुई पिक्चर है. I think VFX is fantastic, CG is fantastic. There are elements like the monster and everything. So this film is amazing for kids, for everyone, for families. And I really hope that people enjoy it because it really is a multi-genre film, right, sir? And like sir said, we have the biggest set, which was like a second home. It was like a huge horror house. I think some of you all have also come there. Yes. Yeah, so that was a beautiful set. That was like our home. So yeah, more fun than challenging. Oh, Yeah. absolutely, absolutely. और वो दिख रहा है. And while you guys are interacting, you know, साथ में वो भी समझ में आ रहा है. Malvika, this one's for you. Please बताइए हमें कि यहाँ challenging, fun इन चीज़ों की बात हो गई, but you know we've seen a lot of things like जो भी assets आए हैं, गाने देख लिए, ट्रेलर देख लिया, but अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, बिल्कुल छुपा के रखा गया है. So talk to us about that. Like ये world में और क्या-क्या होने वाला है? Give us a sneak peek, no? आपने सबसे ट्रिकी क्वेश्चन तो मुझसे पूछा है. अगर ट्रेलर में नहीं बताया मैं कैसे बताऊँ? रिलीज के लिए तैयार कुछ तो बट आई विल स्टार्ट ऑफ बाय सेइंग समथिंग एल्स कि जब मुझे ये फिल्म के लिए कॉल आया था, मुझे लगा था कि कोई मुझे स्कैम कर रहा था. आई एक्चुअली थॉट वाज अ स्कैम कॉल एंड क्योंकि इसकी वजह ये थी दैट आई हैड डन दिस मूवी विद तलपति विजय कॉल्ड मास्टर विच वाज अ रियली बिग हिट. एंड उसकी इमीडिएटली शायद 3-4 महीने बाद मुझे कॉल आया था प्रशांत नील सर से, जो कि सलार के डायरेक्टर हैं. एंड उस टाइम पे वो सलार बना रहे थे और वो कास्टिंग कर रहे थे फॉर द लीड इन सलार. सो आई गॉट अ कॉल फॉर दैट एंड आई मेट प्रशांत नील सर एंड इट वॉज अ ग्रेट मीटिंग. एंड बिकॉज ऑफ डेट्स और समथिंग वो वर्कआउट नहीं हुई, मैं सलार कर नहीं पाई. एंड आई गॉट अ कॉल आफ्टर 6 to 8 months आफ्टर दैट सेइंग दैट दिस इज़ फॉर अ प्रभास मूवी. एंड आई एम लाइक, अरे 2 फिल्में बन रही है, वन इज़ कल की जिसमें दीपिका इज़ देयर एंड वन इज़ सलार जो कि यू नो शुरू हो गई है. एंड आई गूगल्ड एंड आई कुडंट फाइंड एनी अदर मूवी. तो मुझे लगा पक्का समवन्स प्रैंकिंग मी, समवन न्यू कि मैं सलार करने वाली थी. सो सम फ्रेंड ऑफ माइन हैज़ डिसाइडेड टू यू नो पुल माई लेग. एंड देन दे कॉल्ड मी टू हैदराबाद. हमने कभी कोई प्रैंक को इतना तो स्ट्रेच करेगा नहीं. इट कांट बी लाइक एट सम पॉइंट दे हैव टू फेस मी, राइट? And then they really had to convince me, नहीं ये असली में एक फिल्म है and we really want to cast you and it's a leading lady and you know it's a fabulous role, please. They had to like say please come meet me. And then I went to Hyderabad, then I met Maruti sir and then I understood कि अच्छा ये उनकी अगली पिक्चर वो जो शुरू कर रहे, they wanted me for that. So it feels like destiny to make my Telugu debut with Prabhas sir after missing out on Salar. So I'm happy I could do that because I've been a huge Prabhas fan since a long time and I'm a huge Bahubali fan as well. So I'm happy to be here. I'm happy to have worked with him, happy to have known him in person. He's very sweet. Like they all say, darling is a very, very correct nickname for Prabhas sir. And to answer your question, what is there जो कि दिखाए? बहुत सारे सो इट्स लाइक अ मैड वर्ल्ड और ऐसी चीज़ें हो रही है जो कि आप सोच नहीं सकते. आप एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड, ऐसा आप कह सकते हो, क्योंकि हर मोड पे क्या आने वाला है पता नहीं. एंड it's a mixed bag of emotions. There's comedy and then suddenly there's like one horror element that's coming at you. So it's a thrill ride for almost like 2.5 to 3 hours. So I would say it's a theatrical experience. Maruti sir has tried to create a fantastic atmosphere, a very, very electric atmosphere for the viewers. So please जाके देखिएगा and please do experience it with your families. Thank you so much. And as you said, किस मोड़ पे क्या आ जाए वो नहीं पता लगेगा एटलीस्ट अभी के लिए ऑडियंसेस को, लेकिन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बड़े क्लियर थे, उनको पता है वो क्या दिखाने वाले हैं. बिकॉज जब उनकी हमने बातें सुनी है, यू नो द इंटरैक्शंस, द इंटरव्यूज, वीव लव्ड इट एंड पता है कि वो बहुत क्लियर हैं हमें ऑडियंसेस को क्या देना है. रिद्धि, दिस वंस फॉर यू. जब आपको कास्ट किया गया इसके लिए, हाउ वाज इट फॉर यू एंड सेट्स पे क्या क्या होता था? मैंने सुना है खाना वगैरह प्रभास सर के सेट्स पे बहुत आता है एंड है ना, थोड़ा सा वो बताइए हमें. सो मेरी कहानी थोड़ी मालविका जैसी है. जब मुझे पहली बार फ़ोन आया था एसकेएन सर का,
मुझे तो डेफिनेटली लगा स्कैम है क्योंकि मैंने राधे श्याम में भी काम किया है और उन्होंने कहा कि हम प्रभास सर के ऑपोजिट आपको एज ए हीरोइन कास्ट करना चाहते हैं और मैंने कहा ओके ओके, तो ही इज़ लाइक कि हम जेन्युइनली आपको कास्ट करना चाहते हैं। मैंने कहा हाँ और मेरा पापा अमिताभ बच्चन है, लाइक बिकॉज यू नो दैट्स व्हाट you think. And then Eskin sir sent me all the links. Then I was like, okay. Then my then manager was like, Riddhi, you have to call them back. And then I was like, oh no. So then I called him back and I was like, हाँ sir, आप क्या कह रहे थे? And then फिर मारुति सर और एसकेन सर मुंबई आए, तब मुझे नरेशन मिला उस फिल्म का। फिर उसके बाद हमने लुक टेस्ट किए, बहुत सारे फ़ोटोशूट्स किए, ऑडिशंस किए, बैक टू बैक हमने बहुत सारे सीन्स परफॉर्म किए। मैंने तेलुगु सीखी वहाँ जाकर अच्छे से, एंड इस बार मैंने खुद की डबिंग की है तेलुगु में पहली बार, तो आई एम क्वाइट एक्साइटेड अबाउट दैट। एंड तो ये था मेरा कास्टिंग का प्रोसेस। उसके बाद जो खाने की बात आप कर रहे हैं, खाना तो मतलब आप अगर प्रभास सर के सेट पे जा रहे हो तो बी रेडी कि अपना योगा मैट कुछ लेके जाओ, बिकॉज वज़न आपका बढ़ने वाला है। सो हम लोग जब सेट पे भी होते थे तो एक बार प्रभास सर ने खाना भेजा था, एंड उनका स्पेशलिटी है कि वो मतलब अलग अलग वैरायटी तो भेजते हैं, लेकिन उनकी जो क्वांटिटी होती है वो इतनी ज़्यादा होती है, लाइक सच ह्यूज वेसल्स ऑफ फूड, एंड यू जस्ट लुक एट इट एंड यूर लाइक इतना कैसे खाए हम लोग। एंड फिर भी बिकॉज इट्स सो डिलिशियस, यू नो, यू हैव मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, प्रॉन बिरयानी, यू हैव 2-3 काइंड ऑफ करीज, Best chicken biryani. best I love chicken the biryani mutton I've ever biryani. had. And then there's like fried fish, fried chicken, whatever. एंड मैं खा रही हूँ, मेरी पूरी टीम खा रही है, फिर हम पूरे सेट पे बांट रहे हैं कि सब लोग खा लो, लंगर लगा है क्योंकि सर के यहाँ से खाना है और घर का खाना है और इतना खूबसूरत खाना होता है उनका। तो मुझे बहुत होमली फील हुआ, बिकॉज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स आई फाइंड अबाउट द तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री इज़ the respect, as Boman sir said, you know, the adoration that they give you, they make you feel like a family. बहुत familiar लोग हैं, बहुत आपको अपने जैसा फील कराते हैं, एंड सबसे बढ़िया बात जो हमें एक यू नो फैमिली की तरह फील कराती है वो है खाना। और वहाँ के सेट का खाना, विश्वा सर के प्रोडक्शन के सेट का खाना, आई थिंक मैंने कोई होटल में इतना बढ़िया खाना नहीं खाया होगा। तो हमारे जो टिफ़िन आते थे हम उसी से खाते थे। सो खाना तो बहुत होता है, बातें बहुत होती है, बहुत फेमिलियर सेट है, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर। अभी मैं भी बोलने वाला हूँ, खाने में क्या है यार, मतलब है ना, इतना सुनने के बाद पिक्चर ऐसी बनाओ टीजी विश्वा प्रसाद सर के स्टाइल में कि जिसको कॉल जाए वो बोलेगा नहीं नहीं यार ये सच में हो रहा है क्या। इतनी बड़ी पिक्चर, इन सब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। एंड नाउ आई नो वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। सो कहां से आ रहा है पहला सवाल? अविनाश आइए। हेलो। Yeah. First of all, congratulations. Trailers looks amazing. Song is धमाकेदार. So congratulations. Thank you. My question is for Vishwa sir, Garu. हर फिल्म के नाम के पीछे कहानी रहती है. राजा साहब is something like mesmerizing, curious. क्या कुछ है इसकी कहानी? इस नाम के पीछे क्या कुछ है? क्या कुछ और alternative titles आपने सोचे थे, टीम के साथ डिस्कस किए थे? I think we started with having a name to start with Raja, but after few months we came with this title Raja Saab, and like I explained, the story is the emotion between a grandmother and grandson, and then all the discovery what you watch in the movie. Thank you. And Prabhas sir is like a true Raja, na? So I think the title matches it. Matches him completely. He is a Raja Saab.